Okay, class. Very good morning, all of you. I hope you all are well. My humble request you to all that please don't go outside if it is not required, because COVID pandemic become very serious issue for us now. You know that there are lots of casualties were occurred near around us, and we also lost our two teachers. So this is my humble request that if it is not required, please don't go outside. Okay. And second thing is that if anyone found any kind of symptoms like cough, fever, anything, so you will definitely go to the doctor. Okay, don't try to treat this at home, because anything can become serious. Okay, so this is my humble request and appeal to all of you that if you find any problem, you will definitely go to doctor. And second thing, please follow the all the rules that is told by Indian government. Follow the SOPs, wear the mask, use sanitizer, follow the social distancing and other rules that is already mentioned by the Indian government. Okay, this is my humble request. Now, moving on, I want to know how many of you still not complete the computer work. कितने बच्चों ने अभी भी कंप्यूटर का वो कंप्लीट नहीं किया है? I want to know, because it is very important. Then only I will give the lecture number 8. Firstly, complete chapter number 2 till lecture number 7. I was told you earlier. So how many of you still not completed? Vedant Bajpayee, have you done this? Adarsh Verma, have you done this? Huh? What's wrong with you all? You have to done it, okay? So वेदांश ओके यस आपने कर दिया वेरी गुड चलिए ठीक है तो सब बच्चे मुझे आज अपना वर्क सेंड करेंगे ओके मेरे पर्सनल उस पे पीडीएफ फॉर्मेट में एवरीवन शुड गिव मी द वर्क in the form of PDF. Nobody will send the pics. Okay, got it? Got Yes, it? sir. Okay, well and good. Now, beta, I want to know. Yesterday we have discussed what it is called. Chapter number plotter, okay, output device called plotter, but I will not able to send you the recording of yesterday class. Okay, I am sending you the recording as well, because yesterday group was closed earlier. कल उस दिन ग्रुप थोड़ा जल्दी बंद हो गया था कल, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड नहीं कर पाया था. तो कल की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ, बाद में देख लीजिएगा. ओके, यू विल सी द रिकॉर्डिंग वंस द क्लास विल ओवर. ओके ओके, नाउ today I am going to discuss another output device that is speaker. How many of you know about speaker? कितने लोगों ने स्पीकर देखा है? अच्छा सर हमने शायद ही कोई ऐसा उसने स्पीकर ना देखा हो. आई थिंक nobody in the class is don't know about speaker. Okay, a speaker is nothing but it's just an output device which amplifies the voice sound, which amplifies the sound. ये साउंड को बढ़ा देता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, राइट? तो speaker is an output device that gives sound that gives the sound output. They have a low power internal amplifier. Okay, एक्चुअली बेटा इसमें एक एम्पलीफायर लगा होता है. इट कंटेन एम्पलीफायर. क्या कंटेन करता है? एम्पलीफायर. ओके, स्पीकर इट इज एन आउटपुट डिवाइस which amplifies the sound
एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर का मतलब उस चीज को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एम्पलीफायर होता है ना जो किसी लो फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दैट द सेम वर्क डन बाय दिस स्पीकर, ओके। हम धीरे बोलते हैं, उसी साउंड को वो बढ़ा देता है, ठीक है। जितने भी साउंड सिस्टम होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं? एम्पलीफायर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जितने भी लैपटॉप्स, ये जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे इंटरनल आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे एम्पलीफायर्स होते हैं जो लैपटॉप में लगे होते हैं, जिनकी वजह से आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। एम्पलीफायर छोटे छोटे लगे होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। ओके बच्चों, एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो, सॉरी क्लास, sorry for interruption. Actually, there's some interruption from my side. So now, actually, the speaker is basically a device which provides you a sound. Okay, even in your laptop, even your mobile, they all have contained this speaker. The size is basically very small in your mobile and in my laptop, but they comes with various sizes. Okay, so you will already know about each and everything in a speaker, but you have to be read this in the book, page number 30. Okay, I will not give the notes of this speaker, okay, because there is no need to understand, no need to use the notes. Okay, similarly, robotics and machine tool basically are the tools which is used to design the human for human human health. Okay, I can say that कितने लोगों ने आप लोगों ने, अच्छा, रोबोट्स का मतलब आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोबोट्स या रोबोटिक्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोबोटिक्स? बच्चों, रोबोटिक्स से क्या समझते हैं आप लोग? सर, ऑटोमेटिक मशीन। हाँ, look, robotics is a machine which basically designed to help the humans. Okay, an automatic machine which is used to design the humans. Okay, you know that today robotics in robotics is used in every field. आजकल आप लोग robotics का यूज हर फील्ड में देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मशीन, कोई भी दवाई भरनी हो, किसी पैकेट में या किसी बॉक्स में दवाई भरनी हो, तो पहले ये काम इंसान करते थे। कौन करते थे? इंसान। आज जितनी भी दवाइयां होती, बॉटल्स में कौन भरता है? मशीन भरती है। कौन भरता है? मशीन भरती है। उसको पैक करने का काम कौन करता है? मशीन करती है। उस पर लेबल लगाने का काम कौन करता है? मशीन करती है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डन बाय मशीन एंड ऑल दिस मशीन्स आर कम्स अंडर रोबोटिक्स। किसके अंदर आती है? रोबोटिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। रोबोट वो नहीं होता है जो आप देखते हैं। रोबोटिक्स हर वो मशीन है which basically designed to reduce the human efforts. Okay, is a robotic machine. Okay, got it? यस sir. तो आप लोगों ने यार रोबोटिक्स का यूज हर फील्ड में देखा होगा। आजकल तो ये जो कोविड चल रहा है, यू नो अबाउट द कोविड, ये आजकल इसके लिए भी बात चल रही है कि इसमें हम लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज करें। यानी कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स मर रहे हैं, बहुत सारे ये सपोर्ट स्टाफ मर रहा है, यू नो, द नर्सेज एंड वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स, all are suffered from this COVID due to their contact with the COVID patients. Okay, so scientists thought that why don't we use robotics? Why don't we install the robotics in the hospitals? Okay, we don't need to go to doctor. Actually, doctor don't need to go and give the injection. Nurses don't go to the bed and give injections. And even if you take the vaccines, आप में से कितने लोगों के घर में लोगों ने वैक्सीन ले ली है? करण, आपकी मम्मी ने ले लिया है वैक्सीन? नो सर। पापा ने? सर मेरे पापा ने लगा लिया वैक्सीन। अच्छा, अली हमजा, मम्मी पापा ने लगवा लिया है? यस सर। ये बताइए, इंसान ने लगाया है कि रोबोटिक्स ने लगाया? किसी मशीन, रोबोट ने लगाया है? सर, इंसान, ह्यूमन ने लगाया ना। मगर ये काम रोबोट्स भी कर सकते हैं, ये काम रोबोट्स भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट और नॉट? सो इससे फायदा क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? सर, इससे सर रोबोट्स में कोरोना नहीं होगा। इससे फायदा ये होगा कि ह्यूमंस जो है, जो बेचारे सपोर्ट स्टाफ हैं,
वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। जो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो क्या है, वो डायरेक्टली सेफ होंगे, ठीक है। और वो हमारा काम भी जल्दी हो जाए, क्योंकि रोबोटिक्स काम जो होता है ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इंसान गड़बड़ी कर सकता है पर वो गलतियां नहीं करते, ठीक है। सो इट इज अ बेस्ट ऑप्शन, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज थिंकिंग इन दैट वे। अमेरिका में रोबोटिक्स का इस्तेमाल हुआ है, अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है टू फाइट अगेंस्ट कोविड कोरोना। दैट्स व्हाई वहां पर आज केसेस काफी कम है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। 2020 में जब तक वैक्सीन नहीं आई थी यूएस में, तब तक केसेस का ग्राफ बहुत ऊंचा था, बहुत हाई था। once the means the spike is very high, you know, once the what is called the vaccine was developed, like Pfizer and Johnson and Johnson, these are the vaccines which is used in USA. So the automatically they use the artificial intelligence rather than humans, so the automatically the size of and the you get the amount of COVID patient reduce just because of that. And similarly the rate of death is also decreased. Okay, so even you know that India can do this thing, India में भी ये हो सकता है, but problem is that we don't have enough manpower to do so. अभी इस वक्त हमारे पास इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये सब कर सकें, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उस चीज को कर पाए अभी, ठीक है। इसीलिए इतनी डिले हो रहा है। अगर आज अगर इंडिया में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और रोबोटिक्स का यूज हो जाए तो अभी भी ये कोविड को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, पता आपको। But we have suffered from lots of problems, okay, but don't worry, be patient and believe in God, believe in yourself. We will definitely overcome from this, okay, and you just follow all that. Problem is Got it? So you know that robotics is most important thing in nearby future, ठीक है। आने वाले टाइम पे रोबोटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है। और रोबोटिक्स इज काइंड ऑफ यू कैन से दैट बिकम अ न्यू नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे आज के समय में मोबाइल हमारी लाइफ की जरूरत बन गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके घर में कोई सर्वेंट ना हो, घर में कोई काम करने के लिए कोई व्यक्ति ना हो, आपके लिए रोबोटिक्स ही हो, आपके लिए एआई का इस्तेमाल हो। जैसे आप लोग एलेक्सा का नाम सुना है, एलेक्सा का नाम सुना है? यस सर। एलेक्सा से आप कह दीजिए एलेक्सा ओके एलेक्सा ओपन द फैन, तो फैन ओपन कर देती है, राइट। दिस इज ऑल हैपन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। अब हमको उठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी इसी तरीके से एडवांसमेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यू विल बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड यू आर लकी दैट यू आर टेकिंग कंप्यूटर्स, ओके। कंप्यूटर आपने लिया हुआ है, आपके पास सारी जानकारियां हैं, दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है। और भी चीजें पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जो ना समझ में पूछते रहिए, ठीक है। बट रोबोटिक्स इज द ओनली ऑप्शन टू फाइट अगेंस्ट कोविड। ये हमारे पास एक ऑप्शन है ये कोरोना से लड़ने का, क्योंकि हमने देखा है यूएसए में और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज किया है इस लड़ाई में लड़ने के लिए, ठीक है। समझ में? चाइना ने भी। क्या? हाँ, चाइना ने भी, चाइना, ठीक है। जापान, चाइना सब ने इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मैं इसके भी नोट्स नहीं दूंगा आपको, ठीक है। ये भी सिर्फ समझने वाली बात है, आपको हर चीज लिखने से नहीं होती, कुछ चीजें दिमाग में भी रखी जाती है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 में बहुत कुछ समझा दिया है, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? बताइए। नो सर। हाँ, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? अच्छा, कितने बच्चों ने मेरे नोट्स पढ़े हैं अभी तक? जितने मेरे नोट जो पढ़ते हैं बच्चों? युवराज सिंह तोमर, ओके, युवराज सिंह तोमर करते हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मगर बच्चों प्लीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर स्टडीज, ओके। नाउ मेनली अब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बातों के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि जैसे पेन ड्राइव जो होती है, जैसे कुछ जितने भी आउटपुट डिवाइसेस ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सारे इनपुट डिवाइसेस, सारे आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं। मेमोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया थी 2 टाइप की मेन मेमोरीज होती है, रैम और रोम।
और रैम भी मैंने बताया था फर्दर टाइप की रैम्स होती है, फर्दर टाइप की रोम्स होती हैं। उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में भी अलग टाइप की मैंने मेमोरीज बता दी थी, ठीक है। अब आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे आपको कुछ मेमोरीज आपको जाननी चाहिए। जैसे एक होती है फ्लैश मेमोरी। क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। व्हाट इज फ्लैश मेमोरी? तो बता देगा व्हाट इज फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैट मेमोरी। हाँ, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, कोई जानता है? नो सर। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव इज कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी। क्या होता है? फ्लैश मेमोरी, ठीक है। यू विल राइट द आंसर। पेन ड्राइव is called flash memory. Okay, why we call the flash memory? Because we can easily carry this pen drive to anywhere. Okay, हम पेन ड्राइव को कहीं भी ले जा सकते हैं ना? ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। यस सर। सर हाँ सर, फ्लैश मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? फ्लैश मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन, गुड क्वेश्चन। Yes. बताता हूं आपको। किसने क्वेश्चन ये पूछा है? सर यश गुप्ता। ओके यश, यश आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया? यस सर। Okay, a flash memory is a memory which can retain data in the absence of power supply. In the absence of power supply का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करते करते एकदम से लाइट चली गई, या मान लीजिए आपको एक काम कंप्यूटर को कुछ जरूरत है, मान लीजिए आपको एक डेटा ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी हुई है या इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आपको उसको कैरी करना है, ठीक है। पर आपके पास लाइट तो है नहीं, आप उसको चला पाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली उसको पेन ड्राइव में रखेंगे। क्या करेंगे? पेन ड्राइव में रखेंगे और वहां उस कंप्यूटर पर चलाएंगे जहां पर लाइट अवेलेबल है, जहां पर पावर अवेलेबल है। समझ में आई बात? तो ये काम आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? फ्लैश मेमोरी। तो और वो फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल क्या हुआ? पेन ड्राइव। ओके, तो फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी विच इज यूज इन द absence ऑफ पावर सप्लाई। ओके, विच इज रिटेन द डेटा। आपको डेटा भी रिटेन करके देती है, जब हमारी लाइट चली जाती है तो भी इसमें डेटा सिक्योर रहता है, ठीक है, रिटेन कर लेती डेटा ये, ठीक है। आप समझ आई बात? यस सर। इट स्टोर डेटा परमानेंटली। इसमें जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, इसीलिए इसमें भी डेटा Yes, जो है परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है। गॉट इट? यस सर। तो व्हाट इज फ्लैश मेमोरी याद रखोगे? यस सर। ओके, सेकेंड चीज जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं व्हाट इज इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, if I'm talk about the definition of this second pen drive, the pen drive is called as a flash memory. Flash memory is a special memory. A flash memory is a special type of memory which is retain का मतलब क्या होता है? वापस पाना। retain data in the absence of पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की absence में भी बेटा ये लगातार काम करता रहता है। That's why this is called the flash memory. Got it? Got it? Yes. Pen drive Yes, is an sir. example. Okay,
तो बच्चों इसमें बेसिकली जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव एक बेसिकली इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी। यस सर। आजकल आपको पता होगा कि इसकी जो साइज होती है वो 32 GB 64 GB तक भी होती है, ठीक है, पता है ना, पता ये बात, पेन Yes, ड्राइव sir. है ना, 64 GB 32 GB इस तरीके की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके, गॉट इट। Yes, sir. ओके, बहुत पॉपुलर है ये, आप सबने देखी है पेन ड्राइव, सबने देखी नहीं देखी पेन ड्राइव? कोई ऐसा पेन ड्राइव ना Yes, sir. देखी हो कि इसको भी दिखाए पेन ड्राइव को? Yes, sir. देखिए. बताने की जरूरत है, दिखाने की देखिए। जरूरत है, ठीक है। एक्चुअली बेटा पेन ड्राइव को जिसमें लगाया जाता है वो होता है यूएसबी पोर्ट। क्या होता है? यूएसबी पोर्ट, है ना, इट इज इंस्टॉल्ड इन यूएसबी पोर्ट, इट इज इंस्टॉल्ड इन द यूएसबी पोर्ट। Port. अच्छा, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूनिवर्सल Serial bus. यूनिवर्सल सीरियल बस। Port. पोर्ट, ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, समझ में आई बात? पोर्ट, सॉरी, पोर्ट होता पोर्ट, पोर्ट नहीं पोर्ट, ओके। कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लीजिए आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। वेट, आई एम गोइंग टू my dear students, can you say this? Yes, Say sir. this. Yes, sir. This is the USB port. Got it? देखा होगा आप लोगों ने, this is the USB Yes, port, sir. okay? कुछ इस तरीके का सिंबल बना होता है उस पे, कुछ इस तरीके का, ठीक, this is a symbol of USB port, got it? Yes, sir. And this is the USB cable, this is the USB cable, ये USB केबल है, ओके, ये देख रहे हैं आप, USB केबल, समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। यस सर। और कुछ पूछना है? No, sir. तो ओटीजी क्या होता है? ओटीपी, क्या ओटीपी? ओटीजी। ओटीजी, हाँ देख लो ओटीजी कैसे होती है। ओटीजी। हाँ हाँ बताता हूँ ओटीजी। OT. देखो बच्चों क्या होता है, ये ओटीजीज होते हैं, ये देख रहे हैं छोटे छोटे ड्राइव, जिसमें 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 आपने देखा होगा HDMI केबल्स होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्ट स्पेशली डिजाइन होते हैं, जैसे आप लोगों ने बात की होगी उसकी, देखा होगा आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर देखा आप लोगों ने? Yes, sir. या स्कूल में स्मार्ट, अगर आप लोगों ने स्मार्ट, अगर क्लास में अगर आप लोगों ने स्मार्ट क्लास ली होगी स्कूल में, तो वहां पे जो कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई है, एक जो स्मार्ट लैब है, वहां पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो बेसिकली उसमें यूएसबी से कनेक्टेड नहीं होती है, वो कनेक्टेड होती है आपके HDMI केबल से, ठीक है। तो वो सारे के सारे कौन से पोर्ट होते हैं? ओटीजी पोर्ट होते हैं। कौन से पोर्ट होते हैं? ओटीजी। इस तरीके से होती है ओटीजी, छोटी सी होती है, ये पिन थोड़ी छोटी होती है, ये देख रहे हैं, इसे ओटीजी, ये क्या है? ओटीजी है, Yes, sir. क्या है? ओटीजी है, ठीक है, ओटीजी डिवाइस है, समझ आई बात? Yes, sir. और कुछ पूछना है? No, sir. चलिए ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 के बेसिक क्वेश्चन मैंने सब कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपको आज कल नोट्स में भेज दूंगा, प्लीज आज आप लोग मुझे सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों तक नोट्स मेरी बात नहीं पहुंच रही वो भी सुन ले, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मुझे सारे के सारे नोट्स चाहिए, ठीक है। और मैं कल लेक्चर नंबर 8 दे दूंगा, और इसके अलावा कल मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कल से मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा? डाउट्स, ओके। बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा सब कुछ, एक एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, सारे रिव्यू यूट्यूब रिकॉर्ड, चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा मेरे चैनल पे चले जाइएगा, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी व्हाट इज कॉल्ड, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी क्लास रिकॉर्डिंग, ओके। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी टॉपिक वाइज, ओके। Yes, sir.
क्लास Yes, वाइज sir. टॉपिक वाइज आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी डेट वाइज। ओके, तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इजीली सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स पहले नोट्स पढ़िएगा, इसके बाद रिकॉर्डिंग देखिएगा, इसके बाद कोई डाउट आता है तो फिर पूछिएगा मुझसे। ठीक है, दिस इज योर ड्यूटी। Yes, sir. सारा वर्क फेक कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, अभी भी कोई डाउट हो Yes, तो sir. मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अदरवाइज आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीट नाउ फ्रॉम माय साइड। ओके, Yes, आप sir. लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन है बुक से, नोटबुक से या बाहर से कुछ भी तो पूछ सकते हैं, मगर चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड सिर्फ। ठीक है, Yes, sir. और बताइए। कुछ पूछना है? No, sir. कंफर्म बताइए। कल डाउट क्लास है, इसके बाद परसों से हम लोग स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 3, मगर उस केस में जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. कंप्लीट है सर सब। चैप्टर नंबर 3 इतना बड़ा नहीं, Yes, चैप्टर sir. नंबर 4 भी इतना बड़ा नहीं। ठीक है, और सभी चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो, कुछ ऐसे कुछ आपको इस चैप्टर में नया सीखने को मिला बच्चों? सर सारा नया ही आपने बताया था। हमने कुछ पुराना तो नहीं बताया, कुछ घिसा पिटा तो नहीं बताया, नहीं, नो sir. सर। कुछ बुकेश तो नहीं बताया ना मैंने? No, sir. नो सर। हाँ, हैव यू एंजॉयड कंप्यूटर? कंप्यूटर पढ़ने मजा आई? यस सर। चलिए ठीक है, और अच्छा लगेगा आपको। मेरे ख्याल ऑनलाइन में ज्यादा मजा आ रही होगी आपको कंप्यूटर में। यस सर, ऑनलाइन पे आप फोटो वोटो सब दिखा दो। और रिकॉर्डिंग चेक करते हैं आप लोग? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है बच्चों तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। अगर आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, नो डाउट। मगर बच्चों काम भी कंप्लीट करते रहिए और नोट्स भी देखते रहिएगा, रीड भी करते रहिएगा। ठीक है, सब कुछ जरूरी है, कोई भी काम अनइम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल ग्रुप थोड़ा जल्दी बंद हो गया था, इसलिए मैंने आज की रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग आज भेज दी है ग्रुप में। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में भेज दूंगा आपको, मगर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारे देश में बहुत कैजुअलिटीज हो रही हैं, बहुत लोगों की जान जा चुकी है ऑलरेडी, पता है आपको ये बात? Yes, sir. ठीक है, आपकी बात पता होगी तो प्लीज ये गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, है ना? और प्लीज Yes. पेशेंस बना के रखिए, वी विल डेफिनेटली ओवरकम। और हम लोग गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि प्लीज यू हैव टू यूज रोबोटिक्स इन फील्ड ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग किसका यूज करें? रोबोटिक्स का यूज करें, ताकि ये काम जल्दी हो सके। ठीक है, Yes, sir. तो और हम लोग चाहें तो इसमें और स्मार्ट वे में काम कर सकते हैं। जिसको भी बुलाना है एक टाइम सेट कर दें, पर्टिकुलर टाइम पे वो आएगा, उसकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, है ना? भीड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत कुछ Yes. किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट वही है कि कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। तो आप लोग भी बच्चों थोड़ा अवेयर रहिए, मम्मी पापा को भी अवेयर रखिए। ठीक है, और प्लीज सबमिट योर फीस। ओके, बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली इन्वेस्टमेंट वेयर यू गेट समथिंग। बेटा, दुनिया की एकमात्र ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो Yes. प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने मम्मी पापा को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर। Yes, sir.